تم ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بول رہے ہیں جناب؟ میں جسیم اختر رضوی بول رہا ہوں۔ اچھا فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا امام کعبہ کے پیچھے ہم نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، اچھا، تو آپ یہ بھی کوئی تعجب والی بات ہے؟ تعجب کی بات ہے؟ آپ تو دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ میں خواجہ غنی نواز کے مسلک سے ہوں، دیوبند بریلی کا مت کہا کرو، میں دہلی، میں خیر، اجمیری سنی ہوں، اجمیری۔ تو آپ کی ویڈیو آڈیو گرا وغیرہ گرا کے ماریں گے کہ نہیں؟ کیا ہے، کوئی بھی ہو دیوبندی جو گڑبڑ کرے گا تو اس کو انشاءاللہ وقت آنے پہ گرا گرا کے ماریں گے۔ ہم ہیں اجمیری سنی۔ دیوبندی خنزر میں دیوبندیوں کے حمایت میں ارے آپ کوئی بات بھی ڈال کرتے دے، ہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ کوئی بھی ڈال دے، اور بھی چینل پہ ڈال جاتی ہے۔ کفایت صاحب بھی ڈال دیتے ہیں ہماری آڈیو، مولانا کفایت صاحب۔ آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہو اور نزدیوں کے سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ سپورٹ وہ غلط بات کا نہیں کرتے، ہم بریلی والوں کو بھی مانتے ہیں، جو صحیح باتیں مانتے ہیں، کہ جو ناز شریف سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ دیوبند یعنی والے قرات اچھی پڑھتے ہیں اور بریلی والے ناز شریف جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، ایک ایک بات دونوں کی لیں گے نا۔ دیوبندیوں کے کفریہ عقائد سے آپ آگاہ ہیں کہ ارے نہیں؟ کائے کے کفریہ ہے، یہ بتاؤ، غلطی جس نے کی وہ جانے، قیامت میں جواب دے گا۔ اب انہیں غلطیوں ہم کھینچ تان کر کے عوام میں بتائیں گے تو عوام کا تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ دیکھیے جو ایمان لائے گا فرانس کا، جرمنی کا، کینیڈا کا، وہ تو بھاگ جائے گا اسلام سے، کرے بھگاؤ رہے، ان میں تو بہت لفڑے ہیں۔ نہیں، یہ وہ تو کہہ رہا دیوبندی کافر، وہ کہہ رہا کہ بریلوی مشرک، تو وہ کہہ رہا کہ اہل حدیث خبیث، وہ کہہ رہا اہل حدیث کہہ رہا دونوں خبیث۔ تو وہ جو فرانس کا ایمان لانے والا ہوگا نا تو اسلام چھوڑ کے چلا جائے گا، بھیا سنبھالو، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اچھا، چکر رسول نہیں پڑنا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 73 گروہ ہوں گے میری امت میں، اور الا ملتن واحدہ، صرف ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو سب اگر دیوبندی اور غیر مقلدین کو آپ سب کو ایک کیٹیگری سے دیکھیں گے، ایک نظر فرقے سے کے دیکھیں معنی گے۔ کیا لے رہا ہو آپ؟ جی، فرقہ کس معنی میں لیتے ہو؟ فرقہ جسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ، یعنی حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت میں میری امت میں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں صاف الفاظ ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب جو بھی یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے اور اس سے کوئی مطلب نہیں، سب کو اچھا سمجھتا ہوں، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ نہیں داخل ہو سکتا، جبکہ خود امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ 73 فرقے میں 72 فرقے جہنم ناری ہوں گے اور نہیں ایک جماعت جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی، اور آپ کو اچھی نہیں، طرح معلوم ہے آپ پہلے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ حدیث کو اچھی طرح سمجھو۔ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہے نا ابھی؟ جی، اب یہ بتاؤ، جب حضور نے فرمایا جب تو کوئی فرقہ نہیں تھا نا وجود میں؟ وہ تو ہوں گے کہا کہ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں نا، غیب کی میں خبر دے آپ رہے سے ہیں۔ نہیں، آپ مولانا ہے، سمجھائیں گے مجھے، جی جی جیسے میرے ذہن میں اشکال ہے تو بتائیں گے نا۔ جی، بالکل جب تو کوئی بتائیں گے۔ فرقہ نہیں تھا نا جب حضور نے فرمایا؟ جی جی، بالکل نہیں حضور تھا، نے کیا فرمایا؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اس وقت جو جماعت تھی، صحابہ کرام جماعت تھی، اسے تو آپ فرقے میں نہیں شمار کر رہے نا؟ نہیں نہیں، وہ صرف اہل سنت و ہاں جماعت تو تھی۔ بس، تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہاں، صرف اور ایک کیا جماعت۔ فرمایا؟ 72 جہنم میں جائیں گے جی، اور ایک جنت میں جائے گی۔ نہیں۔ یہ بتاؤ، یہ ایک جنت میں، یہ کیا، یہ کون یہ سا؟ تو جب متفق، آپ خود مان رہے ہو کہ حضور کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، یہ ہاں، 73 فرقے ہوں گے حضور نے فرمایا، تو 72 جہنم میں جائیں گے، یہ ایک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک کے بارے میں وہ سوائے اہل سنت و جماعت جو نہیں تو صحابہ، وہ جماعت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ حضور کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، ابھی آپ نے ہی مانا نہیں 73 پھر ہوں گے، 73 ہوں گے حضور نے فرمایا۔ وہ تو آئندہ کی خبر دے رہے ہیں، غیب کی خبر دے تو رہے ہیں وہ جو تو میں مان رہا ہوں نا، لیکن حضور نے یہی تو فرمانا 73 فرقے ہوں گے، اور ابھی آپ نے مانا حضور کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ صرف ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھی، ایک ہاں تو فرقہ جس کو حضور بولتے نے کیا فرمایا؟ 73 ہوں گے، ہیں۔ تو فرقہ تو جنت میں نہیں جائے گا کوئی بھی، فرقہ الا جماعت ملت واحدہ ہے نا، صرف میں ایک ابھی جماعت، ایک فرقہ جس کو آپ نے فرقہ حدیث بتائی، جماعت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے حدیث بتائی نا 73 فرقے ہوں گے، لفظ فرقے کا ہے حدیث میں، جی 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 جی، تو 72 ہی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ سب باطل نہیں، یہ ہوں گے۔ بتاؤ، وہ تو حضور کا فرمان ہے اپنی جگہ، لیکن یہ اس ایک کے بارے میں، یہ فرقہ جو ہوگا اس ایک کے بارے میں
लोगों का उलमा का क्या ख्याल है? एक के बारे में जो सहाबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके पे जो होंगे वो अहले सुन्नत व जमात है, और इसके अलावा सब नारी हैं, जैसा कि अच्छा, ये देवबंदी, अहले फिरके जो हदीस, होंगे, गैर मुक़ल्लिदीन, वहाबी, नेचरी, अहले कुरान, जितने भी बातिल फ़िरक़े हैं सब सरासर गलत में हैं और उनके बातिल अकायद नज़रियात अच्छा ये जो बातिल हैं। फिरके होंगे, जैसे आपने अभी हदीस बताया, हम भी मानते हैं, तो ये फिरके होंगे आधी उम्मत में होंगे या पूरी उम्मत में होंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों में, नहीं, पूरी उम्मत में होंगे कि आधी उम्मत में होंगे? पूरी और सारी उम्मत क्या है, सारे लोग अभी पूरी सारी दुनिया उम्मत में ही में होंगे ना जितने 73 भी फिरके? लोग हैं, नहीं, सारी उम्मत में ही होंगे ना 73 फिरके? नहीं जितने भी लोग हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम की मेरी उम्मत उम्मत में, में जब हदीस में लफ्ज मेरी उम्मत का है, तो फिर आप जितने लोग को क्यों कह रहा हूँ? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो सारी उम्मत में ही होंगे ना 73 फिरके, आप मानते हो ना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। अरे तो उम्मत में, तो उम्मत सारी उम्मत, यानी उम्मत में ही तो मैं कह रहा हूँ। जी अब ये फाजिल बरेली के शेर के बारे में क्या कहोगे? एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हाँ, शाह की यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, जो सच्चे सादिक हैं, उस नहीं तो उम्मत इसमें पर ये एक लफ्ज एक तो है नहीं, फर्द शेर पर में तो ऐसा नहीं, शेर में तो मुतलक कहा है, शाह की आप, सारी उम्मत पे हाँ लाखों सारी सलाम। उम्मत माने आप भी उम्मत में शामिल हो, मैं भी उम्मत में शामिल हूँ, तमाम मोमिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक का दीवाने हैं, गुलाम हैं, वो हाँ सारी वो तो हम भी, उम्मतों वो में भी हम दाखिल हैं। तो हम भी मानते हैं, लेकिन सारी उम्मत का लफ्ज कहा ना, मुतलक कहा है। मुतलक है इसमें, सारी उम्मत यानी फर्दन तो फर्दन जो जो तमाम अब वो कलमा 73 गो फिरके जो होंगे, मुसलमानों वो के। 73 फिरके जो होंगे वो सारी उम्मत में ही तो होंगे। नहीं नहीं, वो अलग है। तो अब ये अलग है, वो अलग है, ये कैसे 73 अलग अलग, फिरके कैसे जो मतलब बता रहा हूँ होंगे, उसका? जो 73 फिरके होंगे ना, यानी अपने आप को अलग जमात बना करके गिरोह, टोली टोली, टोकरे टोकरे जो बनाए होंगे, जैसे कि अभी देवबंदियों से गैर मुक़ल्लिदी, और गैर मुक़ल्लिद से फिर देवबंदियों ही से कादियानी, जैसे निकला से सब अलग अलग फिरके हैं ये, और जितने फिरके हैं सब नारी हैं, सिवाय अहले सुन्नत व जमात के, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो तो अहले अलैहिर्रहमा सुन्नत जितने वल भी थे, जमात तो अहले आप भी सुन्नत व मानते हो, हम जमात भी में थे। मानते हैं कि वो तो हुजूर के जमाने में मौजूद थी साहबा की जमात, उसी को तो अहले सुन्नत कहते हैं। जी, बहरहाल मैं इसमें लेकिन गुफ्तगू अब करने के लिए 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, इसे एक के बारे में बताओ, ये ये कौन सा? हदीस के बारे में, एक के बारे में अहले सुन्नत व जमात वो एक है जो जन्नती है। बहरहाल नहीं, मैं वो इसमें तो हुजूर के गुफ्तगू करने जमाने के से, लिए, ये जब कोई फिरका नहीं था, अभी आपने ही माना कोई फिरका नहीं था उस जमाने में, 73 होंगे हुजूर ने फरमाया। तो इस पे आपका ईमान है या नहीं? अरे वो तो मैं हदीस को समझना चाहता हूँ, इसको इमाम अहले मैं, सुन्नत हजरत अल्लामा शेख उसैदुल हक बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया है इस हदीस का मतलब। जी जी 82 सफ़ात लिखे हैं इसी हदीस पर, 82 के क्या मतलब है चारों इमामों के नजदीक। जी, तो ये कुरान में है ना, हदीस वमा कान आपको, अल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन यतफ़क़हू फ़िद्दीन, कुरान की आयत है। जी जी अल्लाह फरमाता है मोमिनों में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, ये हर फिरके में, तो यहाँ भी तो लफ्ज़ फिरका है कुरान में, फलौला नफर मिन जी, कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम, हर फिरकत फिरके में से मिनन जाए। नास, जी यहाँ जी, फिरके से क्या मुराद लोगे आप? फिरके से मुराद आप फिरके यानी जमात जो अलग अलग है ना, नहीं, ये जैसा कि कुरान का तिरमिजी लफ्ज है, शरीफ, ये अल्लाह ने फरमाया कि फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम, हर फिरके में से जाए दीन का इल्म सीखने के लिए, और वापस आकर लोगों को डराए। तो यहाँ ये कुरान की आयत में फिरके से क्या मुराद लोगे जो अल्लाह ने फरमाया है? फिरके माने गिरोह होता है, समझे, माने लफ्जी तो अगर फिर लेंगे, आप ऐसे कैसे एकदम जो है कि देवबंदियों को, नदवियों को जहन्नमी बनाना शुरू कर देते, काबे इसलिए के कि इमाम को उनके आपने। अकायदे बातिला जो अरे नजरियात तो हैं वो आपने हदीस और देखे कुरान थोड़ी के है, खिलाफ हैं। सबके सबके अकायद थोड़ी देख रखे हैं आपने। जैसे उनके अब जिसका पेशवा अकीदा को, कुफरिया होगा उसे हम भी काफिर मानते हैं, जिसका अकीदा शिरकिया होगा उसे हम मुश्रिक मान लेंगे, जिसने गुस्ताखी की होगी उसे हम काफिर मान लेंगे। देवबंद जैसे वाला भी काफिर मानता है गुलाम अहमद कादियानी को, कौन जैसे देवबंदी गुलाम अहमद कादियानी को मुसलमान मानता है? जैसे कोई नहीं अशरफ मानता। अली थानवी, रशीद अहमद अरे वो गंगोई, पुरानी खलील बातें अहमद छोड़ो, अमरचवी, गले मुर्दे ये मत उखाड़ा करो, बिला वजह की गाढ़े बात है। मुर्दे को क्यों मानते हैं वो मुर्दे अच्छा को, तो दूसरी उसको बात, लात कुरान मारते में हैं जो ना। क्या है, कानन नासो उम्मतों वाहिदा, एक ही उम्मत, अल्लाह ने फरमाया कान नासो उम्मतों वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यिन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। और एक आयत में और है, इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, बेशक तुम एक ही उम्मत हो, है कि नहीं? कुरान में इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, बेशक तुम एक ही उम्मत हो, यहाँ एक ही उम्मत का लफ्ज आया, दूसरी आयत में भी एक ही उम्मत का लफ्ज आया, कानन नासो उम्मतुन वाहिदा, है कि नहीं? अच्छा अतहर साहब, इसमें मत खींचातानी कीजिए, अभी मैं इसमें कलाम करने के लिए आपसे मैं फ़ोन नहीं किया। इसमें मैं आपकी वीडियो देखा जिसमें इमाम काबा के मुतालिक आप कह रहे थे उनके पीछे नमाज पढ़ना वो जायज़ तो है, बिला शक व शुबा हालांकि बिला कराहत नमाज हो जाएगी। हो जाएगी।
अब ये आपके बताओ, नजदीक। ये बरेलवी हजरात ये उम्मत के दो टुकड़े भी करते हैं कि उम्मत इजाबत और एक उम्मत दावत मानते हैं। आप भी मानते हो ना उम्मत इजाबत दावत को? बिल्कुल, जो काफिर हैं अच्छा ये वो बताओ, जो लोग 73 उम्मती फिरके इजाबत में होंगे, हैं। जो 73 फिरके होंगे, ये अब उम्मत बस इजाबत में होंगे उसको या उम्मत दावत उसको में होंगे? उसको रहने दीजिए, पहले आप अपना नहीं नहीं, इस इसी को इमाम समझ का, के ही तो फिर काबे के इमाम के बारे में बात होगी। ये नहीं, 73 इमाम फिरके जो काबा होंगे, के पीछे नहीं आप आप, बरेली से पूछ के बताएं कि 73 फिरके जो होंगे उम्मत इजाबत में जी होंगे बिल्कुल या मैं उम्मत जवाब दे दावत में देता हूँ, होंगे? मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। वो मुर्तद हैं, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं, ये मानते हैं हम लोग, 73 फिरके और का जो खारजी हदीस मानते में हैं। है, ये बताओ ये उम्मत इजाबत में होंगे या उम्मत दावत में होंगे? कौन? जो कलमा नहीं नहीं पढ़ा वो तो है मैं कह रहा हूँ कि और उम्मत इजाबत, इस्लाम को आप नहीं भी मानते जानता हो है। कि बरेली वाले भी कहते हैं सुन उम्मत लीजिए, इजाबत उम्मत दावत, जी उम्मत जी जी, इजाबत मुराद है वो सलाम में के शागी सारी मत उम्मत तलाकों को इजाबत तो उसको बोलेंगे, उम्मत दावत उसको बोलेंगे जिसको दीन की दावत दी जाए उससे, तो यानी फिर उसको 73 मतलब फिरके ही नहीं, किसमें होंगे? इस्लाम को 73 जानता फिरके नहीं है। किसमें होंगे? नहीं 73 फिरके किसमें होंगे, उम्मत इजाबत में या उम्मत दावत में? ये जवाब दे दो आप। देखिए, जो कलमा गो रहेंगे सब दावा करेंगे, कलमा पढ़ेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का जो दावा करते हैं, बहुत सारे फिरके अभी हैं, जैसे वो अहले तो ठीक है, कुरान, वो तो बड़े नेचरी, पीर साहब ने शिया, पूरी 73 राफजी, फिरकों की लिस्ट कादियानी, बना के और देवबंदी बुनियादी में सालिहीन कई गिरोह हो में, गए, बड़े पीर हयाती हो साहब ने गया, ममाती हो गया, उसी में बड़े कई पीर साहब ने गिरोह तो पूरी बट लिस्ट ही गए। बयान कर दी है साहब। तबलीगी जमात में देखिए अलग अलग बट गए, ये सब फिरके में बंटते जा रहे हैं, समझे। बहरहाल हम अहले सुन्नत व जमात का ये हमेशा से मौक़िफ़ है कि नज़दी वहाबी अपने अकायद बातिला की वजह से इस्लाम से खारिज है, काफिर हैं, मुर्तद हैं। लिहाजा हम किसी नज़दी वहाबी बदअकीदा के नहीं पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते, खा वो इमाम हरम हो या दुनिया के किसी भी मस्जिद का इमाम हो। नहीं, ये जना, बताओ, मैंने ये तो आपसे हमारा जवाब मांगा। मौक़िफ़ है, नहीं इस नहीं, पर हम जवाब कायम मांगा। हैं, किसी के मैंने आपसे कहने से ये जवाब मौक़िफ़ मांगा हम कि नहीं ये बनाए हैं। 73 फिरके उम्मत इजाबत में होंगे या उम्मत दावत में होंगे, या दोनों को मिला के होंगे? नहीं, आप इमाम काबा के पीछे अरे अभी जो हैं, अच्छा मेरे बताओ आपको, नहीं इसी में अगर बात कीजिए अभी मेरे ना। हिसाब से नमाज हो जाती है, आपके हिसाब से नमाज नहीं होगी ना? बिल्कुल नमाज नहीं होगी उसके अच्छा जो पीछे, 50 इसलिए लाख कि हाजी वो पूरी दुनिया से आ रहा है, अकायदे उसकी बातिला नहीं, वहाबी हैं। वो तो ठीक है, आप मान लो। अब जो 50 लाख हाजी नमाज पढ़ रहा है उनकी नमाज नहीं हो रही ना? अगर करोड़ों पढ़े, 50 लाख नहीं, नहीं 50 नहीं, करोड़ भी आप ये पढ़े तो बताओ, उसकी जो नमाज जो नहीं हाजी होगी। नहीं, पूरी दुनिया के जो हाजी पढ़ रहे हैं नमाज नहीं हो रही ना भी आपके हिसाब से? बिल्कुल, अगर चाहे करोड़ों, मैं कह रहा 50 नहीं लाख ही अभी नहीं, आप क्लियर करो, शक मत कि नमाज हो रही है कि नहीं जो अभी पढ़ रहे हैं 50 उनके लाख पीछे नमाज ही नहीं, पहले उसको ईमान में दाखिल होना है, है? ईमान में दाखिल होना है। इसलिए कि 1343 में आले सऊद व आले नहीं ये नज्द बताओ, ने अभी जो नमाज पढ़ यहूदियों रहे हैं के काबे या सहारे मस्जिद मिल नबी के इमाम करके के जो पीछे, इसको काबा जवाब दे शरीफ, दो, जो बैतुल लोग मुक़द्दस नमाज नहीं, वो में तो और बात गंदी हो जाएगी। खाने ये काबा बताओ, में अभी कब्जा जो किया। नमाज पढ़ रहे हैं 50 लाख हाजी, इनकी नमाज हो रही है नहीं हो रही, ये बता दो बस। इसलिए बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा अजान, अजान अजान भी नहीं मानी होगी आपके, उनकी अजान अजान नहीं है? उनको ईमान लाना चाहिए, वो तो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है ना। कौन कौन? काबा शरीफ के जो इमाम है, जो इब्ने कय्यूम, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और इब्ने यानी कय्यूम अभी जो इब्ने तैमिया मौजूदा के इमाम मानने है, वाले हैं वो। अभी जो मौजूदा इमाम है, इन्हें आप काफिर मानते हैं? जी, 1343 ईस्वी में, मैं साबित कर दे रहा हूँ ना इसको, आप अरे बेफिक्र हैं। जब अजहरी में गए थे तो फिर पूछ के उन्हें जाना नहीं चाहिए था आपके पीर को कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ का हम इमाम काबा मुसलमान नहीं? शरीफ के एहतराम करेंगे, ना कि नजदी नहीं नहीं, इमाम तो वो की। क्यों गए ऐसी जगह जब एक कौन? तरफ हदीस उसके पढ़ते बाप ला का, तो अकेलू वला उसके तो बाप के जालिसून नहीं है ना। इनके साथ खाओ मत, इनके साथ पियो मत, इनके साथ जी बैठो जी मत, तो बिल्कुल नहीं, फिर मस्जिद बिल्कुल का एहतराम करके देवबंद वालों की मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते हो? जब देवबंद तुम की एहतराम मस्जिद, करने का कहते हो खाने काबा का, तो मस्जिद में एहतराम करके उनकी नमाज पढ़ लिया करो उसके देवबंद वालों बाप की। का आले सऊद ने आले सुन्नत व जमात की ही से कब्जा किया है, उसका बाप का नहीं ये नहीं है वो। बताओ, आपके अजहरी में क्यों गए थे? उनसे दुआ सलाम नहीं किया था? क्या उनके हमारे खाया ही पिया नहीं था? काबा शरीफ बैतुल क्या? मुक़द्दस अच्छा ये हमारे बताओ, हैं, क्या आले सुन्नत व जमात के हैं। वो नहीं, ये बताओ कि अजहरी नेता क्या डान बन के जाएंगे कि मैं किसी से सलाम नहीं करूंगा, सारी दुनिया ऐसे डान बन जाएगी, के, क्यों? ऐसे दादागिरी करके गुस्ल देने जाएंगे कल खाने काबा का? क्या खाने आजीजी में काबा जाना के पड़ेगा? गुस्ल देने नहीं के क्यों लिए तो वो नहीं, जो नसीब उन्होंने वालों की डान बात वहां है, पर डान बन के जाओगे, वो ईमान वाले दादागिरी का कर, हक है। नहीं ये बताओ, बहुत जबरदस्त डान बन के, उस्ताद बन के, या बहुत बड़ा वो कि नहीं मैं किसी से मुसाफा नहीं करूंगा, जो भी आएगा मना किया होगा मैं मुसाफा नहीं करूंगा,
किसी ने पानी, मैं पानी नहीं पीऊंगा तुम्हारे हाथ का, ऐसा किया था क्या वहां पर गुस्ल देने गए थे जब? बिल्कुल वो उन नजदियों का खाना भी नहीं खाएंगे, अच्छा, समझे? मतलब ये है कि वहां पर गुस्ल देने जाएंगे तो ना उनका खा रहा है, ना उनका खाया, नहीं ना नहीं पिया, नहीं, ना बिल्कुल बातचीत अपने नहीं की। हलाल चीजों मतलब की। बातचीत नहीं की, हवाई जहाज से आप उतरे और डायरेक्ट खाने काबा में चले गए, इसका मतलब किसी हवाई से, जहाज से उतरे जैसे वहां मैं पर आपसे बात कर जद्दा रहा में, हूँ तो और बातचीत डायरेक्ट करना फिर थोड़े है, एयरपोर्ट से आपको उतर दीन के का डायरेक्ट पैगाम खाने पहुंचा, काबा में चले गए, इसका मतलब तो ये हुआ फिर। आपको दीन का पैगाम पहुंचाना है ना। वो खारजी करार दिए हैं जैसे महमूदुल अच्छा हसन ये है, बताओ आपके अपने अकायद नहीं की किताब आप क्यों नहीं नहीं, पढ़ते ये जनाब? बताओ कुरान के बारे में हुजूर ने फरमाया इक़राउल कुरान बिलहूनिल अरब, कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं, हदीस है। तो क्या अल्लाह के रसूल काफिरों की नकल का हुक्म देंगे? अच्छा अच्छा, अच्छी बात है हदीस है, हुजूर ने फरमाया कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। जी। अरब वाले तो वो अरब पहले नहीं ये थे बताओ जो अल्लाह ना, के सुने रसूल सुने किसकी गल नकल का यही हुक्म देंगे? मुगालता ईमान देते वालों हो, की? नहीं, ईमान मुगालते वालों देते की हो, नकल जैसे नहीं, वो एक जवाब तो दो आप। नजद नहीं ये से नहीं, आकर आप के, उधर उधर मत जाओ, सुनिए ये सुनिए जवाब ना, दो कि अल्लाह के रसूल ईमान वालों की नकल का हुक्म देंगे ना? बिल्कुल वो नजदी तो फिर लोग आपने हैं खुद जो मान लिया, अरब में आपने ही मान लिया कि गासिब हैं। बिल्कुल इक़राउल कुरान उन जैसा कुरान कोई पढ़ता सुनिए ही ना नहीं पूरी दुनिया में, अतार जैसे साहब, काबे का इमाम पढ़ता है, जैसे अतार मस्जिद साहब, नबवी का इमाम पढ़ता है, ऐसे वो कलम नहीं, कोई हदीस दुनिया में नहीं वैसे नहीं पढ़ता। है, आप बेवकूफ ने बनाए। काबे की इमाम जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ता है, वो नहीं है, बल्कि हदीस में अरब की जिक्र है। और वो लोग नजदी लोग हैं जो नजद से इब्ने अब्दुल वहाब नहीं नजदी तो जो हुजूर ने उनकी शैतानी नकल सिंह का तो निकला हुक्म दिया ना, और कुरान ऐसे पढ़ो शैतानी जैसे सिंह अरब वाले निकल पढ़ते करके हैं, यहाँ पर नकल का तो गुमराह हुक्म दिया ना किया। हुजूर ने, इक़राउल कुरान, कुरान ऐसे पढ़ो बिलहूनिल अरब, जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। जी जी, अरब वाले से मुराद जो पहले अरब वाले थे ना, वो लोग हैं, नजदी लोग अच्छा अब हुकूमत कर अभी रहे के हैं। मुराद नहीं है, अभी के मुराद नहीं है। अभी के जो नजदी हुकूमत कर रहा है ना, नहीं इनकी नकल नहीं कर सकते हम, ये वो कयामत तक के लिए वो हुक्म है कि अरब एक वाले टाइम के लिए। नजद के नहीं ये शैतानी हुक्म सिंह हदीस है वो शरीफ में लोग। जो है, नहीं ये हदीस शरीफ में हुक्म है कयामत तक के लिए, कि एक टाइम एक वक्त के लिए था। सुनिए, वो कयामत तक के लिए अरब वालों के लिए है, समझे? तो फिर हुजूर ने लेकिन नकल का हुक्म दिया है कि कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं। तो वो अरब वाले नहीं ना हैं, वो जो वहां पर अरे अभी यार, नजदी काबे लोग का जो है, इमाम, मस्जिद नबवी का हरम इमाम है तो शरीफ वहीं के पर, नहीं है वो। तो कहाँ के हैं? वो नजदी हुकूमत ने उन्हें ला करके इमाम बनाया है, और उसको नजदी लोग, कहाँ से लाए, अब कहाँ से नजदी लाए? लोग जितने हैं ना दायरे इस्लाम से खारिज है। ये हमारी किताब नहीं, बल्कि अच्छा आपके फिर, घर के हवाला दे देता अच्छा हूं मैं। दायरे इस्लाम से जब खारिज मान रहे हो तो वहाँ की हुकूमत को आप इस्लामी मानते हो अरब की, या गैर इस्लामी मानते हो? कौन? वहाँ की अभी जो हुकूमत को, अभी नहीं अरब की हुकूमत है हुकूमत को ना, आप इस्लामी हुकूमत मानते हो या गैर इस्लामी? सिर्फ नाम की इस्लाम है, नहीं नाम काम की के क्यों तो कह रहा है हूँ, नहीं। आप तो ये कहो कि इस्लामी मानते हो कि नहीं मानते, या गैर इस्लामी मानते हो? देखिए, सारी दुनिया जानती है मौजूदा हरम के अइम्मा और सारी नहीं दुनिया नहीं, के आप वहाँ वहाबी। की हुकूमत के बारे में सुन बताओ कि उन्हें लीजिए, मैं इस्लामी, बता हम तो दे रहा हूँ, इस्लामी हुकूमत मानते हैं, मैं आप क्या इल्मी मानते हो? बात करूंगा आपसे, इसे बगैर नहीं हवाई आप फायरिंग करने इस्लामी की बात हुकूमत नहीं मानते करूंगा। हो या गैर इस्लामी हुकूमत मानते हो वहाँ की वही हुकूमत? बता रहा हूं मैं। सारी दुनिया जानती है कि मौजूदा हरम की इमाम अइम्मा जो हैं और सारी दुनिया के वहाबी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी अरे इब्ने कब का कय्यिम मर गया इब्ने यार, तैमिया ऐसे तो के यजीद पैरोकार यजीद हैं, फना हो, यजीद समझे? फना हो गया तो क्या तुम यजीद के ऊपर डालते अगर रहोगे कि अगर उस जमाने के हवाला लोग देखना यजीदी थे है, तो अब भी यजीदी होंगे? तुम्हारे हिसाब से देखिए, कराम पे आ गए, कभी सुनिए बलवायु ना, आ गए, कभी शिया आ गए, कभी सुन नहीं। लीजिए, तो 1400 साल इल्मी से बात नमाजी कब सुनिए हो ना। रही है तुम्हारे हिसाब से? 1400 साल से नमाजी नहीं हो रही फिर? आप बोल करके खामोश हो जाइए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ बताओ, 1400 साल से नमाजी नहीं हो रही क्यों? शिया थे, फिर करामते थे, बलवायु थे, अब नजदी है 150 साल से, तुम मान जी लो। जी 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 इससे जी। पहले यजीदी थे, तो 1400 साल से नमाजी कब हो रही है खाने काबा मस्जिद नबवी में तुम्हारे मस्जिद हिसाब से? नबी, मस्जिद काबा शरीफ में तो 365 भूत भी रखे हुए थे, अच्छा फिर अब समझे? हज को वो जाए कि हक नहीं होने जाए? की दलील नहीं है, बल्कि हक होने के लिए दलील ये है अच्छा कि ये आप साहबी लोगों ईमान को हो। नहीं, ये बरेली वालों को इतने बुत क्यों याद आते हैं बार बार के, वहाँ बुत रखे इसलिए हुए? कि जो गुस्ताख हैं, गद्दार हैं इस्लाम के, हम अच्छा उनसे जब बुग़्ज़ बुत रखे रखेंगे। हुए थे खाने काबा में, तो फिर हाजियों को रोक दिया जाए कि वहाँ बुत रखे हुए थे मत जाओ, रोक दिया जाए क्या? नहीं, जब हम पाक करेंगे ना उसको, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खाने क्या? काबा से बूतों को, जो खाने काबा से बेईमानों को वहां पर पाक किया जाएगा, यानी मार के दौड़ाया जाएगा इंशाअल्लाह उल अजीज। बहुत करीब है, अच्छा अल्लाह के रसूल को आप जो हयातुन नबी मानते हो खिलाफत कि नहीं? उस्मानिया है वो नहीं हुकूमत आ नहीं, जाएगी। आप हयातुन नबी मानते हो कि नहीं अल्लाह के रसूल को? बेशक। हम भी मानते हैं। मर के मिट्टी में मिलने वाले इस्माइल दहलवी की जैसा अरे वो अकीदा तो नहीं उसको रखते हैं। जान दो, तो जो मर गया उसको जान दो। वो तो तो मर गया, मिट्टी में आप मिल भी गया ना। हयातुन नबी मानते हो, अच्छी मैं भी बात हयातुन नबी मानता हूँ। सुनो, आप अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर मानते हो कि नहीं हर जगह? है। हर जगह, हाँ। हर जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके शान के लायक जैसा हाजिर व नाजिर मानते हैं। अच्छा फिर मस्जिद नबवी के इमाम के पास आप हाजिर हैं कि नहीं?
मस्जिद नबी के इमाम के पास हाजिर हैं कि नहीं, ये तो आप लंतरानी बात करना शुरू कर दिए तो ना। एक तरफ आप हाजिर नाजिर मानते हो, दूसरे ये मानते हो कि हुजूर अपनी मस्जिद के इमाम से ही बेखबर हैं, और साहिब आप बेखबर हैं। इख्तियार मानते हो। एक तरफ वो आप हदीस साहब बताते हो अख्तियार भी कि मानते हुजूर हैं ने अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 32 मुनाफिक को अल्लाह के रसूल ने निकाला, तो अल्लाह के जी रसूल तो आज भी हयात है ना अपनी कब्र जी अंदर में, और बिल्कुल। आप हर जगह हाजिर नाजिर भी मान रहे हो। तो तो अल्लाह ये कैसे तबारक व मान रहे हो तआला कि को आप ऐसा आप नहीं, ब्लेम एक तरफ करने आप साहिब इख्तियार लगेंगे भी मान थोड़ी रहे हो, देर में। दूसरी तरफ आप इख्तियार भी नहीं मान रहे। देखिए एक अल्लाह तरफ साहिब ताला को इख्तियार मानते अख्तियार हो, वाले दूसरी तरफ मानते हो साहिब कि इख्तियार नहीं? नहीं मानते हो। अल्लाह ताला को अख्तियार वाले मानते हैं कि नहीं? फाजिल बरेलवी ने जब कहा खालिक कुल ने नहीं, मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां अल्लाह आपके कब्जे तबारक व अख्तियार में तआला नहीं। को अरे जनाब अल्लाह अतहर ताला साहब, की बात कहाँ चल रही है अभी? है अल्लाह के रसूल की बात चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे पहली बात होनी चाहिए ना। अल्लाह तबारक व तआला को जब ताकत नहीं है तो आप मानते हो, शायद मानते नहीं, होगे, बेशक नऊज़ बेशक बिल्लाह मिन बेशक ज़ालिक। बेशक बेशक, हाँ बताओ तो बताओ, इसमें क्या बात है? इमाम के बारे में क्या बात? खाने काबा के इमाम जो नजदी हुकूमत ने इब्ने अब्दुल वहाब के पैरोकार इमाम है, उसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, हालांकि देवबंदी फतवा है, हराम है, मकरूह तहरीमी अरे वो है। जिसने दिया वो जाने, जो वो सलमान नदवी से हमें कोई ताल्लुक नहीं, मुफ्ती सलमान नदवी वो जाने। देखिए फतावा वो तो कुछ भी देवबंद कह देते हैं, अलमारूफ उनका कोई फतावा भरोसा नहीं है, फरीदिया जिल्द नंबर उनकी अव्वल बात सफ़ा हुज्जत नंबर नहीं है, उनकी बात हुज्जत 158। नहीं है। हम ये मानते हैं कि कमी बेशी हर जमाने में होती है। हिंदुस्तान के हजारों इमाम मैं बता दूंगा जो लोडियाबाजी के चक्कर में हिंदुस्तान से भागे। कोटा के 50 इमाम बताऊंगा, जयपुर के अलग, कानपुर के अलग, लखनऊ के अलग, जहाँ मैं खुद जाता रहता हूँ मुझे मालूम है गुजरात से कितने इमाम भागे हैं लड़की के चक्कर में, कोटा से कितने भागे हैं। फिर तो किसी के पीछे नमाज ही मत पढ़ो, क्या मालूम कहाँ से भाग के आए हो लड़की के चक्कर में, हरामखोरी के चक्कर में आके इमामत कर रहा हो कोटा में, जयपुर में। आपको कोटा की मैं बताऊं कितने इमाम बताऊं कोटा के? लोगों में एक नहीं, इमाम मैं लड़की को इधर लेके उधर की फिरता था। नहीं, दुनियादारी बात आपको नहीं रामपुर के करनी है। बताता हूँ, फुसवाड़ा में एक इमाम था, वो लड़की को लेके गया, आप और खामोश भूतापुर में है एक ना। इमाम था, लड़की को लेके घूमता था। गोविंदपुरा वहीं करीब में स्वार के बाद वहाँ लड़की को चक्कर में गोविंदपुरा से भगाया गया। अब बोलूं मैं? आपको एक ही जिले के ब्राह्मपुर के 50 में इमाम बता दूं, जब मैं जाता अच्छा, रहता हूँ। अब एक बोलूं और मैं? किला खेड़ा में था, वो मोबाइल में अनशन पिक्चर भरा करता था, वो बिलग्राम का था, वो जामे मस्जिद में, उससे भगाया गया वहां से, किला खेड़ा से। ये करीब करीब के इमाम बता रहा हूँ जो भागे हैं। पूरे रामपुर की बात नहीं बता रहा, अभी रामपुर के बताऊंगे तो 100 इमाम निकल जाएंगे। जनाब अब तो बोलूं काबे मैं? के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम के बाद लड़की करीब में नहीं आ सकती, पर्दे अच्छा में भी अच्छा, बात नहीं कर सकती, इतने परहेजगार इमाम होते हैं वो लोग। ठीक है, आप गौर से सुनिएगा। मैं फतावा देवबंद अलमारूफ फतावा फरीदिया जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 158, इसमें साफ साफ लिखा है, वहाबी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी इब्ने क़य्यिम और इब्ने तैमिया वगैरह के मुत्तबईन को कहा जाता है। ये लोग तवस्सुल शरीवी ज़ियारत कबूल के लिए सफ़र करामत बादल ममात के मुनकिर हैं। फिर लिखा, इसके पीछे बेला ज़रूरत इक़्तिदा करना मकरूह तहरीमी है। साफ तर लिखा, ये खुले लफ्जों में साफ साफ देवबंदी व मुफ्ती ने ये तस्लीम कर लिया है। सुन लीजिए थोड़ी, कि वहाबी नजदी के पीछे नमाज पढ़ना करीब वाला फतवा है, करीब जमाने का। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पुराने आपके अकाबिर हैं, वहाबिया नजदिया के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और आलमगीरी, देखिए आलमगीरी जो हमारे हनफियों की मोतबर किताबें हैं, अभी खामोश हो जाए ना, बोलने की बीमारी आपको शायद है, आप सुनेंगे तो इल्म हासिल होगा शायद। आलमगीरी और शामी और दीगर मोतबर कुतुब फिक़्ह में ये ज़ाब्ता बयान किया गया है कि कुल्लु सलातिन उद्दिअत मा कराहत तहरीम तजिबु इयादतुहा। तो ये बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर पर ये साबित हो गया, तुम्हारी नमाज भी अइम्मा हरम के पीछे मकरूह तहरीमी होती है, हराम है। जैसा कि तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 179 पर तसनीफ़ किया आशिक इलाही मरीठी, ये थानवी के बड़े अकाबिर खुलफा में से हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है, जो गैर मुक़ल्लिदीन हनफिया को मुशरिक कहते हैं और तक़लीद शख्सी को शिर्क बताते हैं, बेशक फासिक हैं, सो उनकी इमामत मकरूह तहरीमी है और दानिस्ता उसको इमाम बनाना हराम है। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने खुद लिखा है, तक़लीद शिर्क है। देखिए अल जामिअतुल फरीद मसाइल जाहिलिया। इमाम अहमद इब्न हंबल को मानते, 20 रकअत तरावी पढ़ी है उन्होंने अभी तक, कोरोना से पहले 20 रकअत, अभी 10 रकअत शुरू करी। वो पैसे के, डॉलर के और रियाल के चक्कर में देवबंदी अपना इमाम तस्लीम कर रहा है, देवबंद में बुला करके इन नजदियों को, हालांकि अपने अकाबिर के, थानवी के बड़े बड़े अकाबिर की किताब को बीच चौराहे में जला क्यों नहीं देते?
नहीं 110 मुल्कों के लोग जामे धर्म में पढ़ते हैं, वो भी तो आप उनको इमाम मानते हैं, आप मुसलमान लोग मानते हैं। थानवी को बीच चौराहे में नंगा क्यों करते हैं? जामे अगर उसके मिस्र के लोग भी तो खलीफा को मुसलमान मानते हैं, खुली ये बताओ आफत तुम। को बीच चौराहे में नंगा क्यों करते हैं? अच्छा ये एक बात और जवाब और दो, क्या उनकी जहन्नमी- किताब क्यों नहीं मानते आप देवबंद लोग? वालों को जहन्नमी मान रहे हो और अरब के इमाम को जहन्नमी मान रहे हो कि नहीं आप? जी बिल्कुल। अच्छा जहन्नमी के सीने में कुरान आ जाएगा? ये देखें, बनारस में देखें, काशी एक है जो विश्वनाथ ये पंडित है जो 17 पारा के हाफिज है। अच्छा आप पंडित है, वो पूजा करने वाला, और 17 पारा के हाफिज भी है अगर कुरान मैं नहीं, आप कह रहे हो ना, आपको मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है हवाई अच्छी जहाज तरह का से। किराया मैं दूंगा पूरा आपका, अल्लाह की कसम। आप आएंगे, अल्लाह के वल्लाह आलम। मैं यूट्यूब में खा रहा हूँ, अल्लाह की कसम, हवाई जहाज का उस पंडित का, और 10 लोग आएंगे ना, और किराया भाड़ा में कई हवाई जहाज का। कई चाहे लोग 1 कई लाख लगे या सूरतें 1.5 लाख, सुन लीजिए। वो 17 पारे नहीं 7 पारे का मेरे सामने सुना दे पूरे हाँ, सही, हाँ, हाँ। तो उसको 1 लाख रुपए तुम्हें भी दूंगा इनाम। देखिए, अगर कुरान नहीं, ना लेके हर आओ, ये कोई हवाई के लिए फाइलिंग में आसान बताओ, कर पंडित दिया। को भाई याद है, सुन वो लीजिए, उसने जमानत सुन लीजिए, कैसे आप याद तुमने? ना मेरे साथ में आइए। 15 पारे का हाफिज बताया था, सुन दावा लीजिए। किया था, सदरुल फाजिल ने सुना थोड़ी दर से। वो हाफिज शाह जमाल रामपुरी के जमाने जो पंडित था, वो पहले साहिब ईमान हुआ है, बाद में हाफिज कुरान हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको मालूम है ना 17 पारे, आप तो 7 पारे सुनवा देना, और आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, पूरा हवाई जहाज का किराया में अल्लाह की कसम खा लिया मैंने, और अल्लाह की कसम मैं दूंगा आपको 1 लाख रुपए दूंगा, और 7 पारे वो अच्छा 10 गलतियों के साथ ही सुना देगा ना, पूरे एक पारे में 10 इतनी बड़ी दावा ना करें आप। देखिए, आप 7 पारे सुना देगा तो आपको 1 लाख दूंगा, और पूरा हवाई जहाज का किराया दूंगा। मैंने अल्लाह की कसम भी खाई है, अल्लाह की कसम मैं कुएं दूंगा। के मेंढक हैं आप, दुनिया की खबर आप नहीं रखते हैं शायद। कुरान कहाँ से समझ सुन आएगा? ना वो लीजिए, सही पढ़ सकता, अगर 1-2 आयतें यही तो है कि जिसको याद कर लेगा, सही कुरान को याद करना बहुत आसान है, लेकिन कुरान की स्वाद को स्वाद, वो मखारिज कहाँ से पढ़ लेगा? वो जो पंडित है, वो सुन क्या लीजिए, सीन को सीन पढ़ लेगा, स्वाद को स्वाद पढ़ लेगा क्या? सुनिए ना, वो सुनिए को पढ़ लेगा, तोय को तोय पढ़ लेगा क्या? वो आज अच्छी तरह से पढ़ता है। आप कुएं के मेंढक, आप दुनिया की खबर गिरी नहीं लेते हैं शायद। बात है कि देवबंद वाले तो पूरे कुरान के हाफिज होते हैं ना, वो तो आलिम भी होते हैं, मुहद्दिस भी होते हैं, मुफस्सिर भी होते हैं, कुरान की तफसीर भी बयान करते हैं, मुकम्मल आप कुरान मैं इधर उधर की मैं बात नहीं करूंगा अभी जनाब। इमाम काबा के पीछे आप नमाज को जायज करार दे रहे हैं और आपके अकाबिर हराम कर रहे हैं। अरे तुम इधर जहन्नमी के सीने में क्या कुरान महफूज हो जाएगा? सुन लीजिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा अभी। ये जवाब दो और साबित करो जहन्नमी मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, उसमें जब बातें होंगी तो आपको भी तफसील में बताऊंगा। सीने में क्या कुरान महफूज हो जाएगा? और सुन लीजिए, करना पड़ेगा लाके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आप सुनिए जहन्नमी के सीने में क्या कुरान महफूज हो जाएगा? सुनिए, अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं जवाब तो दो ना, अच्छी बात की अच्छी बात। जनाब मैं आप बताओ जहन्नमी के सीने में पूरा कुरान महफूज हो जाएगा? सुनिए ना, सुनिए। आग पानी एक जगह जमा हो सकते हैं क्या? कुफ्र ईमान एक जगह जमा हो सकते हैं? कैसी बात करो? कुरान बात हो गई। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान नाज़िल किया, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। अल्लाह ताला ने मोमिनों के जरिए से इस कुरान की हिफाजत फरमाई है। जी जी। क्या काफिर कहीं शिया तक कुरान का हाफिज नहीं होता? आप तो कह रहे हो पंडित 17 पारे का शिया क्यों हाफिज कुरान नहीं होता? उसका ये यकीनी नहीं है कि कुरान 30 पारे हैं। 1 लाख रुपए इनाम देने का कहा है और अल्लाह की कसम दिखाई है। वो उसका यकीन ही नहीं है कि कुरान 30 पारे हैं, और वो लोग ज्यादती पर ईमान रखते हैं। आपको 1 महीने का टाइम नहीं, 1.5 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आपको पूरी जिंदगी का टाइम दूंगा मैं। 7 पारे सुनवा देना, 17 नहीं 7 पारे सुनवा देना, बिल्कुल बिल्कुल 70 गलतियों के साथ सुनवा देना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो जनाब तुम्हारे घर के फतवे से साबित हुआ जितने देवबंदी आइम्मा हरम को अपना इमाम बनाते हैं वो सब हरामकारी के मुर्तकिब हैं और खुद हराम हो रहे हैं। इलियास काजी ने अल्लाह के रसूल के बाल से बराबरी की, अपने बाल को बात। सुनो, इधर उधर की बात ना करें ना। नामा पढ़वा उसे तो आपका अकल घुटना में है शायद। उसने फैजान सुन्नत में लिखा। सुनिए ना, सुन लीजिए, मैं आइम्मा हरम के इमाम हरम के पीछे नमाज को का दीदार हुआ, आप बकवास करते रहेंगे। सुन्नत में लिखा उसने। सुन लीजिए, इज्तिमा में सब सुन्नी गए थे। अच्छी बहरहाल सब सुन्नी गए थे। लांडी के अंदर सफा 27 में लिखा क्या सब सुन्नी गए? अरे देवबंदियों के इज्तिमा में सुन्नी जाते हैं, सुन्नी के इज्तिमा में देवबंदी तो सड़ा हुआ मुर्दार से भी बदतर बदबूदार काफिर है ना। ख्वाब कटवाए को देवबंदी सड़ा हुआ काफिर है। सुन लीजिए, दुनिया भर से चंदा क्यों करता फिर रहा है? सुनिए
ये है तुम मस्जिद चैनल में देवबंदियों तुम की कहलवा किताब। दो, इससे कहलवा दो काबे के इमाम के बारे में कि वो मुसलमान नहीं है, मैं तुम्हें जी 50,000 बिल्कुल, मैं रुपए इनाम हवाला दूंगा। दे रहा हूँ इसके आपको। मुफ्ती कह दे मदनी चैनल में कि जी वो जी काबे जी का जी इमाम जी, मुसलमान नहीं है, इसके अच्छी पीछे अच्छी नमाज नहीं बात होगी, है, अच्छी बात 50,000 रुपए तुम्हें इनाम दूंगा। है। 1 अच्छा महीने सुनो, का टाइम दे रहा हूँ। तुम मदनी चैनल में देवबंदियों कहे की वो इमाम, किताब अल इनका फतहुल मुफ्ती आके मुबीन कासिम है, अत्तारी कहे। खामोश रहेंगे। अल फतहुल मुबीन किताब है, जो इस वो तो किताब अदरी के मियाँ ने बारे लिखी में। है, अदरी मियाँ की अरबी में। एक मिनट सुनो नहीं यार, कान में कांटे गड़ने लगते हैं कि क्या अच्छा बकवास करने, या बोलने की बीमारी आपको है? अच्छा सुना साहब सुना। या अल्लाह, मैं बहुत ताज्जुब करता हूं आपसे। अच्छा देवबंदियों की जनाब, किताब अल जनाब फतहुल मकदू मुबीन है। साहब, जनाब हजरत मकदू साहब सुनाइए। अल फतहुल मुबीन किताब है। इस किताब के बारे में तजल्लियात सफदर, जिसको इमाम कहता है मानते हैं देवबंदी लोग, सफा नंबर 422 जिल्द नंबर 5 में लिखा है कि इस किताब की तस्दीक 104 मुफ्तियाने किराम ने की है। इसी किताब के सफा नंबर 428 पर वहाबी फिरके को शैतान की उम्मत कहा गया है। चुनांचे लिखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, होना का ज़लाज़िलु वल फितन। वो तो फिर हदीस है कुछ भाई, आगे हदीस है। चलकर लिखते हैं, यानी मुल्के नज़द में जलजले और फितने उठेंगे और इससे निकलेगी उम्मत शैतान की। सो मुआफिक इस खबरे मुखबिर सादिक के गिरोहे वहाबिया जो पैरों हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के निकले, तो तुम्हारे घर के फतवे से और तुम्हारे अपने उलमा के तहरीरों से साबित हो गया कि वहाबी फासिक जालिम शैतानी गिरोह है। अब तुम ही बताओ, क्या फासिकों जालिमों और शैतानी गिरोह के पीछे नमाज पढ़ना जायज होगी? अब सुनो कुरान की आयत, जायज होगी? इन्नमल आप मुमिनून बताएं। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके कुलूब में जिला पैदा होती है। वज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाए, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमानों में ज्यादती पैदा हो जाती है। अल्लाह ने मोमिनों की शान बयान की, वज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। क्या काफिर ईमान लाया कुरान पर या हदीस पर या अल्लाह उसके रसूल पर? इकरार बिल्लिसान व तस्दीक बिलक़ल्ब जब तक नहीं करेगा मुसलमान ही नहीं होगा। जबान से इकरार कर रहा, दिल से नहीं कर रहा, मुसलमान नहीं। आप लोग जबान से जरूर देवबंद वालों को काफिर मानते हो, अरब के इमामों को, लेकिन दिल से आप मुसलमान मानते हो। आबादी आप 30 करोड़ बताते हो, आबादी तो आप 30 करोड़ बताते हो, 26 मुसलमानों को मानते हो, 26 मेरे मुसलमान घर पार्लियामेंट में के आए, फतवे मैं आप नहीं उसमें दिखा रहा 36 क्यों हूँ, नहीं अभी करते? इसमें आपके देवबंदी कितने, घर इसमें के, बरेलवी कितने, इसमें अहले हदीस कितने? आप 30 करोड़ की आबादी क्यों बताते हो? मैं आप 26 आपके मेंबर क्यों घर बता के रहे हो फतवे पार्लियामेंट के? बताए हैं, लेकिन आप जो है आप कि अपने अबुल कलाम को, अकाबिर को राष्ट्रपति जूते को क्यों क्या मारते मानते हो? हैं? आप उबैदुल्ला खान को क्या मानते हो? आप ये इरफान पठान को क्या मानते हो? आप ओवैसी को क्या मानते हो? देवबंदी बरेलियों में सब में जाते हैं ओवैसी साहब, आप उनको क्या मानते हो? वो सब में जाते हैं देवबंदी बरेलियों में ओवैसी, उन्हें क्या मानते हैं? मुसलमान मानते हो काफिर मानते हो ओवैसी साहब को? किसको? इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं इरफान आप? पठान को क्या मानते हो? ये शामी जो कौन क्रिकेटर है, इसे क्या मानते क्रिकेटर हो? खिलाड़ी? आप क्रिकेटर दुनियादारी के क्रिकेटर है, इसे क्या अखबारात मानते हो? पढ़ मोहम्मद करके, अजहरुद्दीन, उसे क्या अगर मानते हो? आपके अकाबिर की आप किताब पढ़ते तो इस तरह से अच्छा ये बकवासें ना बताओ, करते। आप अरब के इमाम को मुसलमान नहीं मानते ना, काबे के इमाम को, वहाँ के मुअज्जिन को नहीं मानते? इसलिए कि वो खारजी लोग नहीं। हैं, अच्छा ये बताओ, वहाँ की जो वो सहाबा किराम की औलाद मुर्तद वहाँ हैं। है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद वहाँ, क्या बिलग्राम मसौली में ही आ गए पूरे सैयद? क्या पूरे सैयद बिलग्राम मसौली में ही है? क्या मक्का शरीफ मदीना शरीफ खाली हो गया सैयदों से? क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा नहीं होंगे? क्या बिलग्राम में पैदा होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम? क्या मारेरा में पैदा होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम? वो खानदान आज भी मौजूद है जहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। वो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में मालूम करो, आज भी वो खानदान है जहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। उसको भी तुम मुसलमान नहीं मान रहे, उस खानदान को जो सैयदों में है। तो तुम्हारे हिसाब से तो उनका भी निकाह नहीं हुआ, जो वहाँ पर रह रहा है मक्का शरीफ में, उनका निकाह भी नहीं हुआ। हुआ कि अच्छा नहीं? निकाह हुआ अतार क्या? साहब, खारजी के पीछे आप हुआ कि नमाज नहीं? पढ़ोगे? नहीं ये बताओ, जो वहाँ के रहने वाले उनका निकाह हो रहा है कि नहीं हो रहा? काफिर भी तो निकाह कर रहा है अपने से, तो नहीं उसको नहीं, हम निकाह क्यों लें? हुआ कि नहीं हुआ? अगर कर रहा है तो निकाह हुआ कि नहीं हुआ? सुनिए सुनिए, नहीं, काफिर अगर निकाह कौन कर रहा हुआ कि नहीं, ये बताओ हुआ कि नहीं हुआ? काफिर निकाह कर रहा है तो वो अपने हिसाब से अपने कर रहा है, हमको क्या लेना देना उससे? नहीं, निकाह मैं हुआ तो कि नहीं? आपको आपके ईमान हिसाब से आप ईमान बताओ की निकाह, दावत दे रहा हूँ नहीं ना। आप बताओ निकाह हुआ कि नहीं हुआ? आपको मैं पूछ रहा हूँ, कुछ खारजी के नहीं पीछे ये आप बताओ, नमाज पढ़ते निकाह, हैं? नहीं निकाह हुआ कि नहीं, आप क्या मानते हो उसको? निकाह हो कि क्या हो, क्या करे, तो उसे क्या लेना देना नहीं मुझे? नहीं, ये एक जवाब दो, जो अरब वाले निकाह कर रहे हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, आपस में उनका निकाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या बगैर उनके निकाह की औलाद? आपस में करे, वो नहीं बेईमान वो के तुम्हारे हिसाब से निकाह हुआ कि बेईमान नहीं? लोग हैं, बरेली मैं के तो हिसाब से काफिर कह रहा हूँ यार, तो नहीं, ये निकाह के दावत मुतालिक इस्लामी पीछे के पड़े हिसाब हुए से, हैं। बरेली के हिसाब से निकाह हुआ कि नहीं हुआ उनका? खारजी लोग के पीछे नमाज पढ़ेंगे आप? नहीं, निकाह हुआ कि नहीं बरेली के हिसाब से, वहाँ के लोगों का, मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का और वहाँ के इमामों का?
वो इमाम के निकाह से क्या लेना देना, उसको नहीं तो नहीं, बेईमान मान रहे, काफिर मान रहे हैं ना। तो निकाह हो गया मेरे हिसाब से, तो शरई तरीके से निकाह हो गया। काफिर लोगों के निकाह करे या ना करे, ये जना करे या नंगे घूमे, उसको ईमान का दावत दूंगा मैं। निकाह आप मानते हो कि नहीं? निकाह क्यों मानेंगे हम बेकार? तो वो बेईमान मान रहा, काफिर न कह रहा हूं मैं तो उसको। बेनिकाही औलाद पैदा हो रही है सहाबा किराम की वहाँ पर, सहाबा किराम की माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सहाबा मानते हो नजदियों को? सैयदों की भी बेनिकाही औलाद पैदा हो, उनके सैयदों का नजदी लोगों को आप सहाबी मानते हो, इन लोगों को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। सच कहता है मुफ्ती आजम ने, सच कहा है कि देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं। आप वहाँ के रहने वाले कोई मुसलमान नहीं मान रहे, आप वहाँ के अच्छा, खारजी के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं? नहीं, आप ये बताओ वहाँ पर आप मान रहे हो निकाह नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पर हम तो काफिर मान रहे हैं ना, डिक्लेयर कर दिए, तो निकाह के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप ये मान रहे हो कि वहाँ बेनिकाही औलाद पैदा हो रही है मक्का शरीफ मदीना शरीफ? वो काफिर है यार, मैं काफिर डिक्लेयर कर रहा हूँ, तुमको खोपड़ी में दिमाग है कि नहीं? निकाह के चक्कर में क्यों पड़े हो? अच्छा, फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा होंगे? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो काबा शरीफ में पैदा होंगे। नहीं, किसके घर में? क्या आसमान से पैदा होंगे? पैदा तो इंसानों में ही होंगे ना। कहाँ पैदा होंगे आपको मालूम नहीं? उधर ले जा रहे हैं आप, नहीं मुल्क के शाम की तरफ। नहीं तो पैदा मुसलमानों में तो पैदा होंगे ना। ये जो नजदी जो सऊदी बरवजने यहूदी की बात कर रहा हूँ, अइम्मा जो इमाम रखा है ना, ये बताओ कि फिर ये यहूदियों से बदतर कौम है, वो खवारिज हैं। और खारिज में साबित कर रहा हूँ खवारिज। सुनिए आपकी किताब, अब मेरी बात सुनो। ये लो अपने फाजिले देवबंद मौलवी, सुनो, बक मत करो, खामोश। जनाजे की नमाज आपकी बात हो गई, इसकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? बात हो गई, मर जाता है, बात हो गई। हाँ, खामोश रहें। अब मेरी बात आप समझने की कोशिश करें, मैं अपनी इल्मी बात कर रहा हूँ, मौजू से इधर उधर हटने की बात और इधर उधर की बकवास नहीं करूंगा, ताकि सामीन भी समझेंगे। ये किताब है अल मुहन्नद के सवाल नंबर 12 के बारे में, जो किताब है ये अकायदे देवबंद की किताब है, समझे? नहीं, ये बताओ जो अभी मैंने पूछा, फिर बीच में बताएं, फिर बीच में बोलते हैं। नहीं, जो मर जाएगा हाजी बरेलवी देवबंदी, सुन लो ना यार, सुनो ना, तुमको बोलने की बीमारी है क्या? पीलीभीत से जाएगा कोई पढ़ाने के लिए? सुन लो यार, इल्मी बात सुनो। तो फतवा ये भी है कि इनकी सुनो ना, हज मत करो। सुनो, मैं सुन लो, खामोश हो। तुम वो किताब, अच्छा बोलो, कितना बोलना बोल बको। हाँ, मैं बरेली का फतवा ये बता दूंगा कि इनकी हुकूमत में हज मत करो जब तक इनकी हुकूमत है, जिन्हें तुम काफिर मान रहे हो। हक है, तो फिर क्यों जा रहा है हज करने? अच्छा, क्यों जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आप हो गई बात। नहीं, क्यों जा रहे हैं? बात हो गई। नहीं, क्यों जा रहे हैं? जवाब दो। हाँ, सुनिए, अल मुहन्नद के मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फिर बोल रहे हैं। नहीं, ये तो मान लो ना बरेली का फतवा इनकी हुकूमत में हज मत करो। खामोश हो, खत्म किए बात आपकी, खत्म हो गई। मान तो रहा हूँ ना कि हाँ फतवा है इनकी हुकूमत में हज बात खत्म कर लो, मुकम्मल कर लो, जितने बोलना है। इनकी हुकूमत में हज मत करो, ये बरेली का फतवा है। अच्छा है, वाले भी इसको मानते हैं, दावत इस्लामी वाले भी। अच्छा, हाँ, ये फतवा है, ये सब मानते हैं, सब जानते हैं कि इनकी हुकूमत में हज मत करो। तो अब ये जो जा रहे हैं बरेली लोग, इनको हज करने का, इनके हज करने का क्या मतलब हुआ जब बरेली से मना है? हज के अरकान आपको बेखबर हैं क्या? हज का अरकान जो करते हैं, रुकन करते हैं, नजदीक के पीछे नमाज पढ़ना लाजिम फर्ज नहीं, अरकान हज का अरकान नहीं है। का फतवा इन अल्फाज में, अगर हुकूमत में हज करने जाओगे तो अपना माल बर्बाद करके आओगे। माल को बर्बाद लिखा है, बर्बाद करके आओगे माल। सुन लो, हाँ सुन लो गौर से। अल मुहन्नद जो किताब है देवबंदियों के अकायद की किताब है, ये 12 में अपनी किताब मसलिकुल मंसूर। ये खामोश क्यों नहीं रहता? बीमारी है क्या यार? डॉक्टर पागल खाने में रांची काके ले जाऊंगा तुमको पकड़ के? तुम जवाब दे नहीं पाते तो इधर तुमको सुनो ना, अल मुहन्नद, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आपके घर की किताब, आपके घर की किताब इतने गंद से भरे पड़े हुए हैं, जिसमें अल मलिकुल मंसूर के अंदर सफा नंबर 266 पर लिखते हैं अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। सुनो ना यार, करते हैं फाजिल बरेलवी वहाँ बेशक हयातुन नबी माने हुआ भी फिर इनकार करोगे। बहरहाल मैं सफा नंबर 266 पर लिखते हैं। खामोश हो जाए यार, देखा तो बात खामोश हो। नबी तक की तमाम बीवियों को कौन है देख रहा है? अच्छा, बात हो गई। अब तो एकदम बोलोगे तो वहीं पर आकर जूते मारूंगा। अल मलिकुल मंसूर के अंदर सफा नंबर 266 पर लिखी हुई है अल मुहन्नद के मसला नंबर 12 के बारे में। ये है कि
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और उसके गिरोह असर हाजिर के उलमाए हरमैन का हुक्म खवारिज वाला है। खवारिज से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने हजरत अली की जमा से खुरूज किया और हजरत अली और दीगर सहाबा को काफिर करार दिया, और हदीस में इस गिरोह के बारे में सख्त वईद हैं। देखिए अल मलिकुल मंसूर सफ़ा नंबर 266। खुद देखो तुम्हारे इन मौलवियों ने मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब और इसके गिरोह बल्कि असर हाजिर के उलमाए हरमैन को जो जनाब ने ये बताएं ये खवारिज के क्या हुक्म रखते हैं, और उसके पीछे आप नमाज पढ़ने को सादत समझ रहे हैं। खारजी के पीछे नमाज पढ़ते हो। ये उलमाए देवबंद के अकायद की किताब है, और अपने अकायद आज ही कहो देवबंदी पक्के दोगलापन है और रियाल के लालच में। कल भी था अंग्रेज के चेले बनकर के, आज भी नजदियों के इब्न अब्दुल वहाब नजदी के चेले बनकर के देवबंदी धर्म शैतान के सिंह के पीछे पड़े हुए हैं। बोलिए बोलिए, ये देवबंदी धर्म पक्का दोगलेपनी का नाम है। ने काफिर करार दिया। आप इकरार कर लो, मानते हो या नहीं? जब ये खवारिज है तुम्हारे अकायद धर्म की किताब के मुताबिक, समझे, तो खवारिज के पीछे नमाज पढ़ने के लिए अवाम को तू बार बार कहते हो, इससे तौबा करोगे या नहीं? इससे तौबा करोगी या नहीं? अतर साहब, इससे तौबा कर लो। तुम्हारे अकायद की किताब है, तुम्हारे बाप दादा की किताब है। ये देवबंदी किताब या देवबंदियों को बीच चौराहे में लात मारो और कहो कि देवबंदी धर्म आज से दोगलापनी धर्म है और इससे तौबा करता हूँ। अब पागल हो जाओगे, मेरे हवाला जात के सुन करके हवाले में बंद हो जाओगे। अरे तुम तो जने कहाँ की इलाके बातें करते हो। जब सुन अल मोहन्नद सफ़ा नंबर 41-42, देखिए तुम्हारे अकायद की किताब। इस वक्त के तमाम अकाबिर देवबंद ने इस पे दस्तखत सख्त करके तायद और तौसीक की है। इस किताब में 12वां सवाल में है, सुन लो, इनके खिलाफ सुन लो सुन लो सुन लो सुनो 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 नहीं यार, सुनोगे तब ना। तुम्हारे पिछवाड़े में आग मिर्ची को डाल दिया है क्या? तुम्हारा आगे से पीला पीछे से नीला ना हो जाएगा, समझ लेना। मिर्ची छिड़क